Okay, now for last few days we have been discussing here the anatomy and the physiology of the nervous system, and we have discussed here the various divisions of various parts of the nervous system and the peripheral nervous system also. As far the nervous system is concerned, it's a central and the peripheral divisions, and in the central divisions you have seen here the brain and the spinal cord, and in the brain you have seen forebrain, midbrain and hindbrain, and each of them you have seen some areas which we will actually take one by one in detail later on. Some more general features of the nervous system in which we saw here last time, the myelination, what the myelin sheath is, and from where the myelin sheath will be formed, the cells will form them, and if they are within the central nervous system, the fibers will be myelinated by means of oligodendroglial cells, and when it will be in the periphery, they will be called the nerves, and they will be myelinated by the Schwann cells. And we have already told you that these are the myelin sheath. You know that this is the myelin sheath are the cells which are actually making a sheath around the axons. ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं axon hillock or initial segment, they are not covered with the myelin sheath. और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये nodes of Ranvier. And now these are the axon terminals, and each of the axon terminal will end up here in form of a knob. You can say it is the synaptic of the terminal knob. But we have at 90-degree angle we can have axon collaterals also, और collaterals को भी myelin sheath मिल जाएगी. और ये देख रहे हैं आप डेंड्राइट्स. डिपेंड करता है कि एक सेल बॉडी, एक न्यूरॉन कितने न्यूरोनल पूल्स या कितने न्यूरोनल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन लेगा, उस हिसाब से उसके डेंड्राइट्स ब्रांचिंग करेंगे. और यहाँ इसकी ब्रांचिंग आप देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है. ब्रांचिंग ऐसे हो जाएगी कि वो बिल्कुल ट्री लाइक लगेगा कहीं कहीं, जहाँ उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है. और ये आप यहाँ इसका देख रहे हो अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड ऑल दीज थिंग्स हियर. और ऐसा ये पूरा जितना भी आपको दिखाया जा रहा है. और ये आप देख रहे हैं क्या, इंसुलेटेड. और ये है नोड्स ऑफ रेनवियर. एंड हियर द इम्पल्सेस आर द एक्शन पोटेंशियल, जो हम चल के फिजियोलॉजी में देखेंगे, will happen here and then here, then here. That means it will go in a jumping way. Such type of a conduction pattern is called saltatory conduction. Frog-like jumping, you say. Saltatory means frog-like. You have to travel fast. I have to travel faster, and it will utilize less energy also. तो ये conduction velocity, हमेशा कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी न्यूरॉन्स होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई नहीं भी होगी. सो वी विल कॉलिंग देम नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स यार. तो कुछ ऐसे भी होंगे, और जो ऐसे होंगे उनकी कंडक्शन वेलोसिटी बहुत स्लो होगी. सो वेयर यू नीड, तो कंडक्शन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से लेके 20 मीटर्स पर सेकंड तक हो सकती है. पर 20 मीटर्स पर सेकंड उन्हीं की होगी जो माइलिनेटेड होंगी. जो कम होंगे वो डेफिनेटली उनकी स्लो होगी. और स्लो जो है वो नॉन माइलिनेटेड. तो इसका मकसद है कि नॉन माइलिनेटेड दे आर हैविंग अ स्लो कंडक्शन वेलोसिटी. कहाँ होंगे ये चल के फिजियोलॉजी में हम देखेंगे यहाँ पर. तो ये भी आपको यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम दिखाया. और इसको अगर यहाँ पे हमने देखा तो जनरली आपने ये भी सारी चीज़ें, ये देखिए अंदर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये अंदर है. ये तो अंदर है, तो ये माइलिन शीथ अंदर कौन बना रहा है? ये शॉन सेल्स नहीं है, ये oligodendroglial cells हैं. These are called what? Oligodendroglial cells. Oligodendrocytes are oligodendroglia. तो जिसका oligodendroglia, और oligodendroglial cells जो होते हैं वो एट अ टाइम 2-3 और भी काम करते हैं माइलिन शीथ बनाने के अलावा. ये विद इन नर्वस सिस्टम बता रहा हूँ, विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विद इन ब्रेन, विद इन स्पाइनल कार्ड, इफ दिस इज प्रेजेंट. तो ये क्या करेंगे, ये एकदम से अपनी एक्सटेंशंस देंगे. वो मल्टीपल साइटोप्लाज्म, वो मल्टीपल न्यूरॉन्स को माइलिन शीथ देंगे. इसको भी देंगे तो इसको भी देंगे एट अ टाइम में से. और सिर्फ ये नहीं कि एक को देंगे तो 2-3 जगहों पे दे सकते हैं टुकड़े. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जहाँ नर्व्स बनी है वहाँ पर ऐसे नहीं है कि एक माइलिन एक शॉन सेल इसको भी दे इसको भी दे. वो एक शॉन सेल एक ही को देगा और एक ही जगह देगा. अपना सारा पूरा का पूरा वो जो एग्जिस्टेंस है वो उसी जगह पर करेगा.
ये समझ रहे हैं ना आप, ये टुकड़ा ऐसे नहीं है कि कोई और भी न्यूरॉन का एक्सॉन घूम रहा है तो उसको भी दे दे, नहीं, या इसको दो जगह पर दे दे, नहीं, ये पूरा सेल है, ये सेल है, वो रैप करके इस तरीके से आ गया, ये पूरी उसको स्पायरलिंग हो गई है बिल्कुल, तो सेल खत्म, फिर दूसरा सेल शुरू, तो एक टुकड़ा और माइलिन शीथ का, फिर एक शुरू, इस तरीके से फिर नोड्स ऑफ रेनवियर्स बन जाएंगे। ये वो एक्सपोज जो अनएक्सपोज पोर्शन है जो, और ये सिलसिला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का, जबकि ये सिलसिला है अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, माने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर, वो ये होते हैं यहाँ पर। और इसमें तुमने ये न्यूरॉन्स वगैरह देखे, और सिर्फ ये ग्लायल सेल्स एक नहीं देखा है ये तुमने, ये ओलिगोडेंड्रो, बहुत सारे ग्लायल सेल्स होते हैं, आगे चल के अब बताता हूँ कि ग्लायल सेल्स सिर्फ ओलिगोडेंड्रो नहीं है, और बहुत सारे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्लायल सेल है, ये एक और ग्लायल सेल है, ये वाला, तो 2-3 किस्म के डिफरेंट ग्लायल सेल्स होते हैं, क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं कि 1000 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो 1000 बिलियन ग्लायल सेल्स भी हैं, और ग्लायल सेल्स एक जैसे नहीं हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें से एक ये है, एक ये है, तो एक ये भी है, ऐसा एक ये ग्रीन कलर का भी है, तो यू हैव एक्चुअली मल्टीपल ग्लायल सेल्स, ये चल के बताते हैं आप, जैसे ये है, और ये आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये माइलिन शीथ बन कैसे रही है। ये देखिए सेल आ गया एक तरफ से, ऐसे बैठ गया, ये किसकी बात हो रही है? शॉन सेल्स की बात हो रही है। ये न्यूरॉन है, यानी ये एक्सॉन है, ये आ गया साथ में, ये कह रहा है कि मैं इसको पूरा कोट करूं, तो आ गया, पहले तो आ गया ऐसे, फिर उसके बाद ये इस तरीके से ये पूरा कोट हुआ। मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये और राउंड करेगा, यानी ये एक्सटेंशन जो है ना मेम्ब्रेन की, एक राउंड देगी, ये एक और देगी, ये एक और देगी, ये स्पाइरलिंग करता जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये आपका जो सेल है, ये जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन के करीब आ गया, ये सेल किया, और उसकी जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है उसने क्या किया? राउंड किया। क्या एक कि दूसरा? एक और ये इस तरीके से ये हो गई, ये शीथ बन गई आपकी, ये माइलिन शीथ है। क्या पूरे एक्सॉन में कि टुकड़ा? सिर्फ टुकड़ा। उसके बाद अगला सेल आएगा, एक और टुकड़ा, another piece, so it will be in pieces, and in between the intervening area will be naked, you call it node, और इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। समझ गए? तो माइलिन शीथ इस तरीके से होती है, और इस तरीके से माइलिन शीथ होती है किसकी? ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स की, और इस तरीके से होती है किसकी? शॉन सेल्स की। तो बाहर जो होते हैं वो शॉन सेल्स होते हैं, और अंदर जो होते हैं वो ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स है। ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स ऐसे बनाते हैं मल्टीपल कवरिंग, और एक जो है वो दो को भी दे देगा, दो टुकड़ों को भी, 2-3 न्यूरॉन्स को के एक्सॉन्स को दे देगा। तो ये अंदर इस तरीके से होते हैं, वो लाइक दिस आल्सो। तो ये आपका अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ये बाहर की तरफ जो बना था वो ये अंदर बना है। फर्क देखिए दोनों में, जो ये ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स, ये शॉन सेल्स के, ये देख रहे हैं आप शॉन सेल्स के। और ये अंदर सेल बॉडी जो आपने देखे, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस देखें कैसे डार्क है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। ये डेंड्राइट्स हैं, और ये सिंगल सेंट्रल प्रोसेस एक्सॉन है, ये है एक्सॉन हाइलॉक, और ये इनिशियल सेगमेंट, और देन द रेस्ट ऑफ द एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर चढ़ी होगी माइलिन शीथ। और उसके बाद यहाँ तुमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज न्यूरॉन्स की, 2 प्रॉपर्टीज नहीं हो तो फिर न्यूरॉन किसी काम का नहीं है। एक है कि उसमें इरिटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी। मकसद क्या है कि अगर उसको कोई स्टिमुलस दोगे तो उसमें इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा, और वो इम्पल्स जब क्रिएट हो जाएगा तो ये इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा, और उसी हिसाब से वो अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस तब देगा जब सेंस करे वो, यानी एक्साइटेबिलिटी क्रिएट हो। सिर्फ एक्साइटेबिलिटी होगी, ये न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी, ये देखें क्या है, ये नोड्स हैं, ये गैप है क्या? ये नोड है, ये नोड ऑफ रेनवियर कहलाएगा। और ये क्या है? ये माइलिन शीथ है, ये टुकड़ों में जो आप देख रहे हो। और इस तरीके से ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स देख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी इसकी होती है कंडक्टिविटी। न्यूरॉन के 2 काम, एक ये कि वो जनरेट करे, जो स्टिमुलस दें तो उससे इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाए वो, और दूसरा जो होगा उसके अंदर कंडक्टिविटी होनी चाहिए। कंडक्टिविटी का मकसद है कि वो जब आप करंट दें तो वो आगे से पास ऑन करे वो, तो ये होगा कंडक्टिविटी। तो यू से इट इज अ कंडक्टिविटी। ट्रांसमिटेड, तो उसमें ट्रांसमिशन, ये 2 चीज़ें उसमें होनी लाजमी है यहाँ पर। और उसके बाद न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। यानी आप अगर ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई थोड़ी सी कट ऑफ ही कर दोगे ना, तो ये चंद मिनट के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। मसल्स में ऐसा नहीं है। मसल में आपने देखा होगा, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी आवर्स। इफ द ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ, आपकी कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, चेस्ट में पेन हो जाता है, शुरू हो जाता है,
लेकिन 3-4 घंटे बर्दाश्त कर लेता है वो, उसके बाद वो इरिवर्सिबल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है उसकी, फिर हम कहते हैं कि भाई हो गई इन्फाक्शन। लेकिन ये नहीं कि चंद मिनट में हो जाए। ऐसा ही स्केलेटल मसल्स हैं, अपर लिम्ब के स्केलेटल मसल की ब्लड सप्लाई तुम टोटली कट ऑफ कर दोगे ना, 4 घंटे चल जाएगा। फिर भी ये टाइम है आपके पास कि आप उसकी ब्लड सप्लाई बहाल करें किसी तरीके से, तो फिर आपका ये फिर दोबारा काम करना शुरू कर देगा। लोअर लिम्ब तो 6-7 घंटे चल जाती है। नर्वस सिस्टम चंद मिनट तक होता है। वजह इसकी ये है कि इट हैज गॉट अ वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट। इतनी गंदगियां फौरी तौर पे जमा हो जाती हैं कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी ब्लड सप्लाई को कट ऑफ करना। इसलिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई जब सडनली कट ऑफ हो जाती है तो चंद मिनट के अंदर अंदर उसकी इन्फॉक्शन हो जाती है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ये जो फालिज होता है या स्ट्रोक, इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, चंद सेकंड चंद मिनट लगते हैं। ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई विदिन 2 मिनट्स, और कुछ तो न्यूरॉन 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। मैक्सिमम कोई बहुत ढीठ किस्म का न्यूरॉन होगा ना तो 5 मिनट चलेगा, और 5 मिनट बाद तो वो भी चला जाएगा। तो इसका मतलब उसमें टाइम है ही नहीं है। पेशेंट को कट ऑफ हो गई ब्लड सप्लाई, थोड़ी सी फेंटनेस हो गया, उठेगा तब तक इन्फॉक्शन हो चुकी होगी। इसका मकसद यह है कि स्ट्रोक को बचाने का तरीका क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंट करें आप। जैसे ना किसी ज़माने, जैसे हम कहते हैं कि भाई एक जो सुसाइड बम्बर होता है, जो खुदकुश बम्बार होते हैं, इस हादसों को रोका नहीं जा सकता। रोकने का तरीका क्या है? आप इसको पकड़ें उधर ही से जहां से इसको तैयार किया जा रहा है, यानी उसके ठिकानों को आप पहले से ही पकड़ें। एक दफ़ा आ गया ना अगर, तो वो हादसा हो जाएगा। तो इसमें यही है, स्ट्रोक अगर एक दफ़ा ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई ना तो फिर इन्फॉक्शन हो जाएगी, यानी स्ट्रोक हो जाएगा उसको। तो उसको बचने का क्या तरीका है? उसको बचने का तरीका है प्रिवेंट करें उसको। माने आपको पता होना चाहिए किन किन लोगों को होती है, कैसी कंडीशंस में होती है। उन कंडीशंस को रोकेंगे तो नहीं होगी, वरना एक दफ़ा अगर हो गई तो फिर चंद मिनट का मामला है। ये वजह क्या है? क्योंकि इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट है, उसके अंदर ऑक्सीजन फ़ौरन इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए मुसलसल सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई। चंद मिनट में भी आपने रोका तो इतनी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी और लैक्टिक एसिड के वो डेथ हो जाएगी उस सेल्स की। तो मिनट लगते हैं सिर्फ। तो दिस विल बी एक्चुअली हियर। और न्यूरॉन आपको पता है कि साथ में आपने यहाँ पे देखा कि ये न्यूरॉन्स नॉन माइटोटिक होते हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस, ये डिवाइड नहीं होते। तुम्हें किस्मत में जो मिले हैं यही रहेंगे। इसका मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन की या न्यूरॉन चंद अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी जगह पे दूसरे न्यूरॉन्स नहीं आएंगे। ऐसी बात स्केलेटल मसल्स के लिए भी है और ऐसी बात कार्डियक मसल के लिए भी है। इन्फॉक्शन के साथ जब वो कार्डियक मसल चला जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा नहीं आते, उसकी जगह पर फाइब्रस टिश्यू हो जाता है बस। बाकी वो वर्क फंक्शन वो मायोकार्डियम वाला अब नहीं करेगा। अब इसका मकसद है कि वेंट्रिकल का एक हिस्सा अगर चला गया, मायोकार्ड इन्फॉक्शन एमआई हो गई या हार्ट अटैक आ गया, तो उसके अंदर वो जो 30% हिस्सा आपका गया तो ये गया। अब आप 60% के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, वो जो टुकड़ा गया तो ये दोबारा, तो वजह इसकी क्या है? क्योंकि वो उसमें माइटोसिस नहीं होती, सेम सेल्स नहीं आएंगे तो क्या वो खाली रहेगा? खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह पर ग्लायल सेल्स वगैरह आ जाएंगे। तो ग्लायोसिस हो जाएगी, जैसे फाइब्रोसिस होती है ना, तो यहाँ ग्लायोसिस हो जाएगी। वो टुकड़ा जो ज़ाया हो गया, उस टुकड़े पर न्यूरॉन्स नहीं आएंगे, उस टुकड़े पर ग्लायल सेल्स आ जाएंगे। जैसे ना फर्श हुए, अगर टाइल का कोई टुकड़ा टूट गया तो उस टाइल को जो निकाला तो ऐसी टाइल नहीं मिली आपको, तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? छोड़ नहीं देंगे, सीमेंट लगा देंगे ऐसे, तो वैसा लगेगा नहीं, तो वैसा भी फंक्शन नहीं होगा, वैसी खूबसूरती भी नहीं होगी वैसा। तो इसका मकसद ये है कि उस जगह पे ऐसे नहीं कि सुराख हो जाएगा, या यहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा मसला, लेकिन यह है कि अब वो काम का नहीं रहेगा, वो जगह भर जाएगी बस, लेकिन वो काम का नहीं रहेगा। स्केलेटल मसल में भी ऐसा ही है, उसमें भी नॉन माइटोटिक है। तो 3 चीज़ें नॉन माइटोटिक, तो 3 टिश्यू ऐसे होते हैं जो कभी भी डिवाइड उनके सेल्स नहीं होते। ऐसे टिश्यूज़ को, ऐसे सेल्स को, टिश्यूज़ को हम कहते हैं द परमानेंट टिश्यू। समझ गए? और इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरॉन्स के शेप और साइजेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी थे। न्यूरॉन्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स में यही सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में आपने देखे थे टर्मिनल, साइनेप्टिक नोब्स वगैरह और कोलेटल से। और ये जनरली हम यहाँ कुछ कर चुके हैं। जैसे सेल बॉडी है, मैंने बताया आपको कि सेल बॉडी जहाँ जहाँ ये सेल बॉडी होगी, जहाँ जहाँ सेल बॉडी या डेंड्राइट्स होंगे, तो एक्सॉन्स के ऊपर क्या चढ़ा होता है? और माइलिन शीथ लिपिड होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जहाँ जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होंगे, वो एरिया ग्रे लुक देगी आपको, ग्रे शेप, ग्रे कलर देगी।
क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी नहीं है। लेकिन जिस जिस जगह पर आपको माइलिन शीट चढ़ी हुई नजर आएगी, जहां एक्सॉन्स मौजूद होंगे, वहां उसके ऊपर क्या कोटिंग होगी, व्हाइट कलर की, तो वो व्हाइट मैटर कहलाएगा। तो व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है लाइक दिस आल्सो। और जहां सेल बॉडीज आपको दिखाई थी, मैंने आपको दो चीजें कल बताई थी उस दिन, एक थे न्यूक्लियाई, एक थे गैंग्लिया। ग्रे और व्हाइट मैटर, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये व्हाइट और ये ग्रे। अब दूसरी चीज जो आपको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओवरऑल जब भी आप किसी नर्वस सिस्टम के किसी हिस्से में जाते हैं, जैसे स्पाइनल कार्ड है, ये हमने स्पाइनल कार्ड देखा, तो स्पाइनल कार्ड में ये क्या चीज है, कौन सा मैटर, ग्रे, और ये, और अंदर होता है उसका सेंट्रल कैनाल जिसमें होता है CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो किसी भी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में, एनी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम यू डिस्कस, you see three things. Number one, centrally available central canal contains CSF that is surrounded by gray matter and that is surrounded by, तो आप अगर जाएंगे ना स्पाइनल कार्ड में, ठीक है, अगर आप ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये है हमारा सेरिब्रम, ये है हमारा डायनसेफलॉन, यहाँ है मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मिड ब्रेन के बाद मेडुला, और ये सेरिबेलम, और ये स्पाइनल कार्ड। जब आप स्पाइनल कार्ड को कट लगाएंगे तो हमेशा आप पाएंगे अरेंजमेंट कैसी, अंदर सेंट्रल कैनाल, ये ग्रे और उसको सराउंड करता हुआ व्हाइट। जैसे ही जाएंगे आप मेडुला ऑब्लांगेटा में, बात सेम है, इनसाइड कैविटी सराउंडेड बाय ग्रे एंड दैट सराउंडेड बाय व्हाइट। ऐसा ही जाएंगे तो पोन्स में भी सेम, मिड ब्रेन में भी सेम, डायनसेफलॉन में भी सेम। लेकिन ये कितने पार्ट हो गए, 5, टोटल है 7। तो रह गए, बाकी कौन रह गया, एक रह गया क्या, और एक रह गया। तो ये दो हिस्से जिनके नाम शुरू होते हैं सेरी से, सेरी, वहां अंदर सेंट्रल कैनाल मौजूद है, मानते हैं, लेकिन सेंट्रल कैनाल को सराउंड करने वाला यहां पर ग्रे मैटर नहीं है, वहां व्हाइट मैटर। और उस, हाँ जी क्या बता रहे थे, सेल उसको जो सराउंड कर रहा है वो ग्रे नहीं है, वो व्हाइट मैटर है। उस व्हाइट को जो कवर कर रहा है वो अब ग्रे है। ये उल्टा है, किसमें उल्टा है, दोनों सेरीज में, सेरिब्रम में भी, सेरिबेलम में भी। देखिए इसको कट लगाया, ये आ गया। अंदर तो मौजूद होगी कैविटी, लेकिन कैविटी को सराउंड कर रहा है कौन, व्हाइट मैटर। इधर सराउंड कर रहा है कौन, अब इस व्हाइट को सराउंड कर रहा है कौन, ग्रे मैटर। तो व्हाट इज पेरिफेरल, व्हाइट के ग्रे, हु इज पेरिफेरल, ग्रे इज पेरिफेरल एंड हु इज सेंट्रल। हालांकि बाकियों में ऐसा है नहीं है, सिर्फ सेरिब्रम और सेरिबेलम में ऐसा है। तो व्हाट इज पेरिफेरल हियर, ग्रे इज पेरिफेरल। और हमेशा उस ग्रे चीज को हम कहते हैं कार्टेक्स। आपने सुना हुआ है ना, कार्टेक्स पढ़ा ना उधर भी आपने, किडनी में भी पेरिफेरल वो रिम थी, कार्टेक्स तो अंदर वाला था मेडुला। कार्टेक्स कहते ही पेरिफेरल चीज को है। और जब पेरिफेरल के लिए वर्ड पड़े कार्टेक्स, तो फिर सेंट्रल के लिए वर्ड पड़ता है मेडुला। किडनी में देखा था ना, कार्टेक्स एंड मेडुला। फिर एड्रिनल ग्लैंड, जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, उसमें भी ऐसा ही है। अंदर वाली चीज जो डीपर है वो मेडुला, वो पेरिफेरल है तो कार्टेक्स। तो पेरिफेरल चीज को हमेशा कार्टेक्स कहते हैं। तो अगर इसको कहेंगे कार्टेक्स, तो जो सेंट्रल व्हाइट मैटर है इसको मेडुला कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है इसको मेडुला कह दो, यहाँ मेडुला नहीं कहते। अगर ऐसा किया तो फिर हमने सेरिबेलम में भी ऐसा करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं। सेरिबेलम में अगर ऐसा करेंगे तो पहले से ही तुम्हारे पास एक मेडुला मौजूद है ये, अब इसको भी मैं मेडुला कहूं, इसके व्हाइट मैटर को भी नाम मेडुला दे दूं, और फिर सेरिबेलम के व्हाइट मैटर का नाम भी मेडुला दे दूं। क्यों दे दूं, क्योंकि मैंने यहाँ इसके पेरिफेरी का नाम कार्टेक्स डाला हुआ है। तो ये मजबूरी नहीं है हमें, इसका नाम भले तुम कार्टेक्स डाल दो, अच्छा लगता है, लेकिन इसका नाम मेडुला न डालो तो अच्छा है। डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किस मेडुला की बात हो रही है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ यही मेडुला नहीं, सेरिबेलम वाला ही मेडुला नहीं, इसका तो नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। और मजे की बात यह है कि इसने नाम लपक लिया है मेडुला का। मेडुला नाम दरअसल स्पाइनल कार्ड का है। कभी सुना है आपने स्पाइनल कार्ड का नाम कभी मेडुला हो? एक्चुअली स्पाइनल कार्ड का नाम मेडुला है।
ये मेडुला कहाँ पड़ा, ये स्पाइनल कार्ड कहाँ पड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम को मिला के क्या कहते हैं? स्पाइन। इसलिए स्पाइनल कार्ड का असल ऑफिशियल नेम है मेडुला स्पाइनलिस। स्पाइन में पड़ा हुआ मेडुला। तो मेडुला नाम ऑफिशियल किसका है? स्पाइनल कार्ड का नाम है स्पाइनल मेडुला, मेडुला स्पाइनलिस या स्पाइनल मेडुला। और इसकी एक्सटेंशन चली गई है कहां? क्रेनियल कैविटी में, ब्रेन का हिस्सा बन के। तो हम उसको कहते हैं ये ऑब्लोंगेटेड पार्ट है किसका? मेडुला। स्पाइनल कार्ड का नाम क्या है? मेडुला। और ये एक्सटेंशन है, ऑब्लोंगेशन है किसकी? मेडुला की, इसलिए उसका नाम पड़ गया है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला नाम दरअसल स्पाइनल कार्ड का है और कोई जानता ही नहीं है कि इसका नाम स्पाइनल कार्ड का है। स्पाइनल कार्ड का तो नाम ही पड़ गया स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड, रसी रसी करके इसका नाम डाल दिया, वरना इसका ऑफिशियल नेम था स्कूल में मेडुला। दरअसल जैसे ना बच्चों के स्कूल में नेम होते हैं और घर पे उनके नाम होते हैं दूसरे, तो दरअसल इसका बेचारे का ऑफिशियल नेम ये था। और ये लपक लिया किसने? उस मेडुला ने, जो दरअसल ऑब्लोंगेशन ऑफ मेडुला है, और आज उसका नाम मेडुला मेडुला पड़ गया। तो इतने मेडुला मिक्स हो जाएंगे, असल ऑफिशियल नेम था स्पाइनल कार्ड का, ले लिया इसने, और फिर इसको भी कहोगे मेडुला, तो उसको भी सेरिबेलम वाले वाइट मैटर को, इतने मेडुला आप मिक्स हो जाएंगे तो इसको मेडुला बोलते ही नहीं है। जनरल साइंस की किताबों में इसको मेडुला बोला गया है, लेकिन आप इसको मेडुला अपनी किताबों में लिखा ही नहीं हुआ आपका आप। लेकिन कार्टेक्स बड़ा पसंद किया गया नाम, सेरिब्रल कार्टेक्स। उधर उसकी सेरिबेलम की कार्टेक्स है बाकायदा, सेरिबेलार कार्टेक्स। और इसमें क्या मौजूद होगा? सेल बॉडीज के लाखों करोड़ अरबों सेल बॉडीज उसमें होंगी, क्योंकि आपको पता है ना, जहाँ सेल बॉडी डेंड्राइट्स होते हैं वो उसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई नहीं होती तो वो उमूमन ग्रे देता है लोग। लेकिन अगर वाइट मैटर माइलिन शीट चढ़ी हुई होगी तो ऊपर से वो वाइट ही वाइट नजर आए, पॉपुलेशन वाइट होगी जाहिर है। ये बात आ गई समझ में? तो ये उमूमन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कार्टेक्स। और ये न्यूरॉन का भरा हुआ है, सारे खेल सेरिब्रल कार्टेक्स के हैं, क्योंकि असल चीज़ तो वही होगी। ये मेमोरी इधर है, ये जजमेंट इधर है, ये इमोशंस, तो ये सुनना देखना सब कुछ ग्रे मैटर है, सेरिब्रल कार्टेक्स है। और इतना डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड है, जगह कम है, कार्टेक्स बहुत बड़ी है। अगर उसमें खोल दूंगा ना तो ये तकरीबन ये आधा कमरा भर देगी, लेकिन उसको इतने छोटे से एरिया में समाना है, तो फिर कैसे हो जाएगी? ये तुम्हारी कार्टेक्स है, ऐसे फोल्डेड हो जाएगी। देखिए फोल्डिंग कैसे है, ये फोल्डिंग सिर्फ यहाँ नहीं है, ये अंदर गई तभी अंदर भी फोल्डिंग है ऐसे। इसको मैं खोलूंगा तो चादर की तरह ऐसे, नॉट लेयर्ड। ये लेयर तो खैर एस्ट्रोलॉजिकल ही है, कन्वोल्यूटेड कहेंगे आप इसको, फोल्डिंग कहेंगे आप इसको। और ये जो फोल्डिंग यहाँ सेरिब्रम में है, ये तो कुछ नहीं है। जब सेरिबेलम में देखोगे ना फोल्डिंग तो हैरान रह जाओगे। सेरिबेलम की फोल्डिंग को मैं अगर अनफोल्ड कर दूं ना तो आधा फुटबॉल का ग्राउंड भर जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी शीट बना दूं ना अगर ऐसे, तो आधे फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर मैं शीट लगा सकता हूँ। सेरिबेलम की फोल्डिंग ऐसे होती है, इसकी तो फिर भी बहरहाल कुछ तमीज़ वाली हैं, वहाँ तो आपको इस तरीके से फोल्डिंग मिलेगी। तो ये सेरिबेलम इस तरीके से यहाँ पर हमने जनरली देखा। तो आप देखें कि ग्रे और वाइट की जो अरेंजमेंट है सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंट है देन अदर 5 रीजन्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वरना हर जगह पर ये है, अंदर सेंट्रल कैनाल सराउंडेड बाय ग्रे, सराउंडेड बाय वाइट हियर, but here in the seri and seri, that's cerebellum and cerebrum, inside central canal surrounded by white, that is surrounded by grey। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होगा। समझ लो सेल बॉडी, तो सेल बॉडीज का तो आपको पता है ना कि सेल बॉडीज क्या है, ये आम सेल्स ही हैं, उनके अंदर सारा कुछ है। यहाँ पर उसका असल काम क्या है? असल काम जो एक सेल का काम होता है क्या करे? वो रिसीव करे सिग्नल्स, उनको अंदर इंटीग्रेट करे, और इंटीग्रेट करे उसके क्या करे? इम्पल्सेस को आगे बढ़ाए, जनरेट करे और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करे। ये न्यूरॉन का काम है। और हर न्यूरॉन को कुदरत ने अपने अपने फंक्शंस दे दिए हैं। और यहाँ जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा न्यूरॉन इस वक्त आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो न्यूक्लियस, जिसके ऑर्गेनेल्स, और इसके बाद ये एक्सॉन हैलॉक, ये इनिशियल सेगमेंट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखें, ये जो आप टुकड़े देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है कि ये बाकायदा सेल्स हैं, इनके अपने न्यूक्लियस हैं। ये किसके? शॉन सेल का न्यूक्लियस, कि वो सेल ही आया था, उसके बाद अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे घुमाया, घुमा के ऐसे थिक बना दिया अंडर से। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द माइलिन शीथ। और ये आप टर्मिनल नॉब्स देख रहे हो, साइनेप्टिक नॉब्स, ये आप देख रहे हैं। अंदर से खोल के ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कुछ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और ये आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये पूरा ये सेल्स इस तरीके से यहाँ पर भरे हुए हैं। ठीक है ना, एक्सॉन आप देख चुके, उस दिन हमने डिस्कस किया यहाँ पर, और डेंड्राइट्स पे आप देख चुके यहाँ पर।
और ग्रे और वाइट की बात आपने यहाँ पर डिस्कस की, और एक्सॉन आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। इनका काम है क्या? टू टेक द सिग्नल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, और जो टुवर्ड्स द सेल बॉडी आए वो डेंड्राइट्स है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सॉन कोलेटरल्स हैं, और ये टर्मिनल्स हैं, और ये कोलेटरल्स हैं, कोलेटरल के अपने टर्मिनल्स होंगे ज़ाहिर है, और ये आपको नॉब्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ये नॉब्स आके कहाँ रुकेंगे? जिस पर तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, किसको? या तो कोई और न्यूरॉन हो, आपका पैगाम जो है, आपका मैसेज जो है किसी और न्यूरॉन को देना है, या आपकी मंजिल आ जाए आगे। और मंजिल कौन होगी? जहाँ मोटर एक्टिविटी करेंगे आप, यानी कौन हो? या तो मसल हो, स्मूथ हो, कार्डियक हो, या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, ये हो, या स्केलेटल मसल हो। तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ मसल होगा तो फिर हो जाएगी वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर कोई और न्यूरॉन होगा तो फिर हो जाएगा साइनेप्स। तो उसका नाम कहेंगे क्या? साइनेप्स। इसलिए फिर इसका नाम साइनेप्टिक नॉब डाला गया है। ये क्यों इतना मोटा है? इसलिए मोटा है क्योंकि यहाँ पर मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जगह चाहिए ज़्यादा, तो ये बबल हो जाता है ऐसे, और न्यूरोट्रांसमीटर ये तो, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर का यही काम करना शुरू करें कि रिलीज हो जाए बाहर, गैप में रिलीज हो जाएं। इसका मकसद ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे खुले नहीं पड़े हुए होते, ये पैकेट्स में होते हैं, उनको कहते हैं वेजिकल्स। तो दीज आर कॉल्ड द वेजिकल्स, हम उसको वेजिकल्स कहते हैं। और ये इस तरीके से आपको देखा, ये एक्सॉन हाइलॉक है, ये फर्स्ट रीजन ऑफ एक्सॉन है, और ये प्रोट्रूड होगा किससे? सोमा से। और ये जो है यहाँ पर ये जितने भी, अब देखें आप कितनी जगहों पर आप स्टिमुलस दे रहे हैं इसको, अपने न्यूरॉन को, हजारों जगहों पर, क्योंकि डेंड्राइट्स की इतनी ब्रांचेज हैं, हर जगह पर आपको हजारों न्यूरॉन्स इसको स्टिमुलस दे रहे हैं। ये सारा स्टिमुलस आके इधर आके समअप होगा। एक्सॉन हाइलॉक जो है, इसमें क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ समअप होते हैं। कौन से वाले? जो डेंड्राइट से रिसीव होते हैं, यहाँ समअप होते हैं, और ये ट्रांसमिट करता है इनिशियल सेगमेंट को, और वहाँ से फिर जंपिंग करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। अगर ये जंपिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो मैलिनेटेड होगा और बहुत ही फास्ट जाएगा, और अगर अनमैलिनेटेड होगा तो फिर स्लो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल सेगमेंट किस तरीके से, और एक्सॉन हाइलॉक कैसे है। तो एक्सॉन हाइलॉक और इनिशियल सेगमेंट ये इस तरीके से होती है, और इनिशियल सेगमेंट विल बी दिस इनिशियल पार्ट ऑफ द एक्सॉन। तो आप यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये जो अनमाइलिनेटेड है वेरी शॉर्ट इन लेंथ, और माइलिनेटेड लंबे होते हैं, और लंबे होते हैं तो फिर तुम्हें स्पीड भी चाहिए वहाँ पर, और स्पीड चाहिए तो फिर माइलिनेट होना पड़ेगा। तो दिस इज एक्चुअली लाइक, तो ये बहुत ही एक्साइटेबल पार्ट होता है एक्सॉन जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसके अंदर क्या होगा? जाहिर है साइटोप्लाज्म, जिसको हम एक्सोप्लाज्म, देखिए यहाँ साइटोप्लाज्म है, क्या साइटोप्लाज्म इधर ही होगा कि इसमें भी जाएगा अंदर? तो एक्सॉन में भी जाएगा, और उसमें बहते हुए वेजिकल्स जाएंगे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आके रुकेगा? नॉब्स पे, टर्मिनल्स पे। लेकिन ये टर्मिनल्स पे रुकेगा तो क्या ऐसे खुला हुआ न्यूरोट्रांसमीटर होगा कि पैकेट्स में आएगा? तो ये पैकेट्स में न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएगा कौन? क्या एक्सॉन कि सेल बॉडी? सेल बॉडी। तो यहाँ बनते इधर हैं, बहते हुए आते हैं यहाँ से ऐसे, और आके रुक जाते हैं यहाँ पर नॉब पर। जिस वक्त जरूरत होती है तो डिलीवर होते हैं, नहीं तो रुके होंगे। समझ गए? और ये कितनी देर तक चलेंगे? आपको 10-15 हज़ार स्टिमुलस के लिए काफ़ी होते हैं। थोड़े से ऐसे कंट्रैक्शन में थोड़े से रिलीज़ हो गए, थोड़े से रिलीज़ हो गए। अगर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस की ना तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप उठा देते हैं, ऐसे बहुत सारी देर के लिए उठाते हैं, तो फिर देखें आप थक जाते, जिसको थकना कहते हैं। ये थकना क्या है? अब आप उसमें वो पावर नहीं रही आप में। अंडरस्टैंड? ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, इसको हम फटीग कहते हैं, फटीग। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, और उसके बाद माइलिन शीट तो ये आपने देखी थी शॉन सेल्स में। ये देखें कैसे है, ये देखें, और ये दोनों को आप यहाँ पे देखें, ये करके, और ये हालत यहाँ, ये ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स का ये फ़र्क देखें दोनों का। ये देखें कैसे यहाँ से आया, एक दफ़ा आया, उसके बाद एक चक्कर, 2-3, और ये इतने चक्कर काट लिए इसने, और इतनी थिक हो गई, लेयर्ड हो गई उसकी माइलिन शीट, और ये अंदर दब के रह गया हमारा एक्सॉन। लेकिन जो टर्मिनल्स पे नहीं होंगे, क्योंकि टर्मिनल्स पे ये आ गया तो फिर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा कैसे बाहर। और नोट्स ऑफ रेनवियर ये आपने देख लिया, नोट्स। एक्सॉन टर्मिनल बात हो गई वहाँ पर, साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर ये मैंने आपको बता दिया। और एक्सॉन कोलेटरल जो आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर निकलते हैं, और 90 डिग्री का भी देखें, 90 डिग्री पर ऑलमोस्ट निकलने का भी बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर ये
ऐसे एक्यूटली निकलते हैं ना, एक्यूट एंगल पर ऐसे, तो ये नैरो होते, और यहाँ साइटोप्लाज्म आने में वो स्लोली आता, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर जा नहीं सकते थे। यहाँ अगर ये 90 डिग्री पे निकले तो ये ज़्यादा वाइडर होंगे और साइटोप्लाज्म जाएगा और कंडक्शन अच्छी होगी यहाँ। ठीक है, डेंड्राइट्स की बात हो गई यहाँ पर। और उसके साथ है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मैं आपको बता चुका था कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये वाले होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं। हर जगह जहां जहां ब्रेन में कॉर्टेक्स वार्टेक्स भरा हुआ है इनसे। लेकिन आपको कुछ जगहों पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के न्यूरॉन्स आपको यहां मिलते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। बात अगर आप स्पाइनल कार्ड की करें, एक सिंपल स्पाइनल कार्ड की बात अगर करें, तो स्पाइनल कार्ड में हमने देखा था ना, स्पाइनल कार्ड के अंदर में आपने देखा होगा कि अगर मैं स्पाइनल कार्ड का कट सेक्शन काटूं, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे आएगा। ये इसका सेंट्रल कैनाल, और ये आ रहा है क्या, ग्रे मैटर, और बाहर है ये व्हाइट मैटर। अब इस ग्रे मैटर के अंदर क्या मौजूद है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज, यानी सेल बॉडीज ऑफ न्यूरोसोमा और डेंड्राइट्स। एंड वी हैव इन द एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी हैव 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिकली जैसे ना एक पॉपुलेशन है कि ह्यूमन बीइंग हैं, फिर दो मेजर पॉपुलेशंस हैं कि बाबा एक ग्रुप है, एक हाफ है मेल का, एक हाफ है फीमेल का। जैसे यहाँ है एक हाफ समझ लो कि वो है मोटर न्यूरॉन्स का और एक हाफ है सेंसरी न्यूरॉन्स का। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, एक मोटर न्यूरॉन बता रहा हूँ, वो बैठेंगे इधर आके, यानी अल्लाह ताला जब हुक्म फरमाएगा कि बाबा ये 1000 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं उनमें 500 बिलियन मोटर हैं, 500 बिलियन सेंसरी, और वो जो मोटर हैं वो आगे वाले हैं और सेंसरी जो हैं वो पीछे वाले। मोटर जैसे मर्द है, सेंसरी जैसे औरत है, तो जो मोटर है वो आगे बैठेंगे और जो सेंसरी है वो पीछे रहेंगे। कुदरत ने ऐसा रखा है हिसाब किताब। देखिए मर्द जो है वो आगे रहेगा, लीडर मर्द होगा। आपने देखा वो कभी कभी आप देखा है कोई हज़ारा साल की तारीख आप हज़रत आज़म से लेके यहाँ तक आप पहुँच जाएँ, आपने 1400 साल पहले कोई नबी आपने कोई औरत नहीं देखी होगी, क्योंकि लीडर जो है मस्ट बी द मेल। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई औरत पसंद नहीं है, कि ज़ाहिर है वो ज़ाहिर उसी की तख्लीक है, लेकिन उसके लिए जो काम है फिर दूसरा है। औरत का हक ज़्यादा है। नहीं, हक मैं नहीं कह रहा हूँ औरत का हक ज़्यादा है या मर्द का हक कम है, ऐसा नहीं है। हर एक के अपने अपने हुकूक हैं, उसे रोल अलग अलग है, वो कुदरत की तरफ से बिल्कुल अलग से मतलब। लेकिन मखलूक तो इंसान है ना, वो इंसान है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर भी न्यूरॉन न्यूरॉन है, लेकिन दो काम अलग है। मोटर वाले को बिठाया आगे और सेंसरी वाले को बिठाया पीछे, आधे आधे हो गए आप। और जो मोटर वाला है, दिस मोटर, तो वो भी ऐसे है, कैसे, मल्टीपोलर। और इसका एग्जाम, क्योंकि मोटर है, तो मोटर है तो उसके क्लाइंट क्या हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और स्केलेटल मसल, मसल एंड ग्लैंड्स। वो मसल एंड ग्लैंड अंदर तो नहीं ना बैठे हुए, वो बाहर बैठे हुए हैं ना। तो इसका मकसद है कि तुम अंदर बैठ के सब कुछ करोगे लेकिन असर दिखाओगे बाहर, तो बाहर आओ तो दिखाओगे ना, तो बाहर आके दिखाओगे। इसका मकसद है कि बाहर निकलेगा तुम्हारा क्या, एग्जाम निकलेगा, और आके टारगेट करेगा किसको, मसल के फाइबर को या किसी ग्लैंड को, तो ये अपना काम दिखाएगा जब तुम कहोगे। ये मोटर एक्टिविटी है, और इसमें तुम्हें नजर आए क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं। और ये मैंने एक दिखाया है, ऐसे बिलियंस में, हजारों बिलियन, सैकड़ों बिलियन, हजारों तो नहीं सैकड़ों बिलियन, क्योंकि टोटल मिला के 1000 बिलियन न्यूरॉन्स है, तो ये तकरीबन 500 बिलियन न्यूरॉन्स ऐसे होंगे तकरीबन, समझ। और ये न्यूरॉन्स इस तरीके से, तो जो इसका एक्सॉन जहां से निकला है ये, तो अंदर भी माइलिन शीट चढ़ी होगी इस पे यकीनन टुकड़े पे, और बाहर भी चढ़ी होगी टुकड़े पे। तो जो अंदर चढ़ी होगी वो ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल के हिस्से में आएगी, और जो बाहर होगी वो शॉन सेल के हिस्से में आएगी, लेकिन चढ़ी जरूर होगी, ताकि कंडक्शन वेलोसिटी, जैसे मैं ऑर्डर करूं तो फौरन
आपके मसल के साथ आए और कांटेक्ट करे। ऐसे नहीं कि मैं इरादा करूं कि ये थोड़ा सा मैं ग्रिप करूं और ग्रिप जाके घर जाके करूं, क्योंकि इतनी देर से सिग्नल आया है। जैसे आ जाता ना कभी कभी सिग्नल स्लो होते हैं, अभी पैसे दाखिल करो तो फिर SMS आता है जाके शाम को सिग्नल हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक ये। तो ये क्या है, ये मोटर एक्टिविटी ऐसे चल रही है। लेकिन जब बात आएगी ना सेंसरी एक्टिविटी की, और बाहर जब ये बाहर आ गए तो इसका नाम वहां पड़ गया क्या, नर्व। ये बंडल का क्या नाम पड़ गया, नर्व। अब क्या सिर्फ इस नर्व में मोटर एक्टिविटी चल रही है कि सेंसरी भी चल रही है। ये तुम्हारी स्किन, अब तुम कर रहे हो यहाँ पर टच, तो यहाँ होगा रिसेप्टर। टच के स्टिमुलस को वो कन्वर्ट कर देगा इंपल्स में, क्योंकि इसका काम है। जैसे तुम पेट्रोल लाए तो बिजली पैदा की, तो जनरेटर की जरूरत है, तो जनरेटर, तो दिस इज सेंसरी रिसेप्टर। ये स्टिमुलस अप्लाई किया, करंट में कन्वर्ट हुआ इंपल्स में, और इस इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कराना है, यहाँ तक पहुँचाना है। वाई मीन्स अ वायर, वायर हैं क्या, फाइबर्स। वो फाइबर्स हैं तो माने पहले सेल बॉडी चाहिए, क्योंकि सेल बॉडी के ही तो होते हैं फाइबर्स। तो सेल बॉडी कहाँ होगी, क्योंकि ये सिग्नल बाहर से आए हैं इसलिए सेल बॉडी भी बाहर होगी, ये नहीं होगी, यहाँ होगी। यानी इसका मकसद है कि सेल बॉडी मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड। और ऐसे जो न्यूरॉन होंगे ना, ये सबसे पहले इंपल्स का मजा ये चखेंगे, क्योंकि ये पकड़ेंगे इंपल्स को। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहेंगे सेंसरी। लेकिन दिस न्यूरॉन विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि यही है वो जनरेटर में तार डालूंगा मैं, और उस तार को मैं आगे ले आऊंगा स्पाइनल कॉर्ड तक। और इस किस्म के न्यूरॉन्स की शेप होती है ऐसे, क्योंकि इसका एक्सॉन ही होता है एक, और इसका कोई डेंड्राइट होता ही नहीं है। अब मैं इस एक्सॉन को निकाल के किधर ले जाऊं, स्पाइनल कॉर्ड में कि रिसेप्टर में, या दोनों में। एक से पकड़ूंगा दोनों, तो दूसरे तक पहुंचाना है ना मुझे। अगर मैं सिर्फ इसी को ले जाऊं यहां ऐसे, तो करंट तो आ गया इसमें, लेकिन यहां पहुंचा ही नहीं। यहां नहीं पहुंचा तो मुझे एहसास कैसे होगा। इसका मकसद ये है कि इस एक्सॉन को तुम्हें क्या करना है, स्प्लिट करना था ऐसे, और इसको इसमें डालना था। अब दोनों फर्क है कि नहीं है। तो शक्ल हो गई इसकी क्या, सूडो यूनिपोलर हम उसको कहेंगे। यूनिपोलर भी नहीं कहेंगे आप, एक तो पोल है तो एक ही करें ना आप, भाई सूडो यूनिपोलर होता है जब ऐसे ही हो जाता है। ऐसे तोड़े तो फिर आप बायपोलर कहें ना, नहीं बायपोलर होता है ऐसे दो पोल्स पे, तो हम इसको कहते हैं सूडो यूनिपोलर। और हमेशा समझ लेना कि सेंसरी न्यूरॉन नंबर 1, जिसको हम प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, वो हमेशा हमेशा सूडो यूनिपोलर होते हैं, और उनकी सेल बॉडी हमेशा बाहर होती है। और कलेक्शन ज़ाहिर है एक दिखाइए, होंगे ऐसी हजारों, तो फिर बाहर होगी एक कलेक्शन के नाम पर, एक नोड्यूल जैसी, तो फिर नाम पड़ जाएगा गैंग्लियन। तो गैंग्लियन मोटर न्यूरॉन्स पे होते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स पे होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं सेंसरी गैंग्लियन। तो ये नर्व है तुम्हारी। इस नर्व के कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। ये बाहर जो नर्व रन कर रही है, तो ये उसमें सेंसरी मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं। ये सेंसरी मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं, और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे मिल जाते हैं ऐसे। तो अंदर जब जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के करीब, तो ये क्या होते हैं, 2 रूट्स होती हैं। ये सेंसरी रूट है, ये मोटर रूट। तो गैंग्लियन किस रूट पे होना चाहिए, पोस्टीरियर, यानी सेंसरी रूट पे, और सेंसरी रूट पीछे होती है, इसलिए इस गैंग्लियन का नाम पड़ गया है सेंसरी रूट गैंग्लियन, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, या पोस्टीरियर को डार्सल भी कहते हैं, तो डार्सल रूट गैंग्लियन। तो इसको गैंग्लियन कहते हैं। और ये क्या एक होगा कि ये भी बहुत होंगे, लेकिन यहां इस कलेक्शन का नाम न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस वो नहीं समझना, वो जो न्यूक्लियस बचपन से सुनते आए हो, सेल की बॉडी के अंदर गोल गोल जो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट एट वन प्लेस एंड परफॉर्मिंग वन कॉमन फंक्शन, यू कॉल दिस होल पार्टी एज न्यूक्लियस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक नई डेफिनेशन है न्यूक्लियस की, और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन इधर ही यही सेम चीज अगर यहाँ हो तो फिर उसका नाम गैंग्लियन। बाहर हो तो गैंग्लियन, अंदर हो तो न्यूक्लियस। बाहर हो तो नर्व, अंदर हो तो ट्रैक्ट, क्योंकि अंदर भी तो एक्सॉन्स के बंडल से होते हैं ना। क्या सिग्नल ऊपर की तरफ जाएं तो असेंडिंग ट्रैक्ट, नीचे की तरफ आए तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। लेकिन ट्रैक्ट वर्ड पड़ेगा यहाँ, इधर नहीं पड़ेगा। हालांकि रास्ता तो ये भी है, लेकिन इस रास्ते का नाम फिर नर्व है। समझ गए। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेगा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन। तो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन इज ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज सूडो यूनिपोलर। और ये सूडो यूनिपोलर कहाँ चला गया, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ चला गया। किसकी तरफ,
लेडीज की तरफ, लेडीज के खाने में यहाँ पे चला गया और क्या करेगा, इधर आके अपने सिग्नल्स को हैंड ओवर करेगा कि बाबा मेरा काम खत्म हो गया, कोरियर आया, लिफाफा आपके सर्वेंट को दे दिया उसने, मेरा काम खत्म। तो इसका मकसद है कि इसे क्या न्यूरोट्रांसमीटर को या सिग्नल को क्या हवा में डाल देगा कि इधर कोई न्यूरॉन बैठा हुआ होगा, कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन, और फिर इस सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट इधर बैठे हुए होंगे और फिर इसका एक्सॉन निकलेगा, तो इधर फिर किस किस्म का न्यूरॉन होगा, फिर मल्टीपोलर होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन मल्टीपोलर होगा, लेकिन ये है पहला, तो ये होगा सेकेंडरी न्यूरॉन या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन विल बी, तो सूडो यूनिपोलर हमेशा प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिसकी सेल बॉडी गैंग्लियन की शक्ल में बाहर बैठी हुई होती है। और यहाँ जो ये पड़े होंगे, तो अब क्या करेगा, क्या बस आपने ले लिया तो क्या लेके आप बैठ जाएंगे, क्या आप ऊपर भेजेंगे इसको, क्योंकि एहसास टच का, पेन का ऊपर के हायर सेंटर्स देंगे आपको, और देंगे तब जब आप भेजेंगे ना, तो आपका ये करेगा। और आपको पता है कि ये सेरिब्रम तक जाएगा और सेरिब्रम कंट्रोल्स अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसका मकसद है कि ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की जिम्मेदारी है कि ये क्रॉस हो जाए, क्रॉस होके अब असेंड करे, असेंड करेगा तो ये क्या है इसके एक्सॉन से, और असेंड करेगा अभी तो कौन करेगा, एक्सॉन करेगा, और जब असेंड करेगा तो फिर व्हाइट मैटर में असेंड करेगा। गाड़ी आपकी भले गैरेज में बैठी हुई हो, वहां खड़ी हो, लेकिन जब आप दौड़ाएंगे तो फिर रोड पे ले आएंगे उसको, तो फिर ये कहाँ रन करेगा, व्हाइट मैटर में रन करेगा। और व्हाइट मैटर की व्हाइटनेस है ही इनके इमाइलिन शीथ की वजह से। ये कोई एक थोड़ी गए, हजारों गए, और एक बंडल थोड़ी गया, हजारों बंडल गए, एक और ट्रैक, एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तो वो व्हाइट मैटर व्हाइट ही इस वजह से है क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों एक्सॉन हैं जिन पे ऊपर माइलिन शीथ चली हुई है। तो फिर ये हो जाएगा ट्रैक्ट, स्पाइनल कार्ड में से ट्रेवल करेगा, फिर आगे मेडुला आएगा, फिर वो एक और भी स्टेशन आएगी पोन्स की, फिर मिड ब्रेन की स्टेशन आएगी, तब जाके ये फोर ब्रेन के डायनसेफलॉन में एंटर होगा, सीधा सेरिब्रम में नहीं जाएगा। कोई भी सेंसेशन डायरेक्ट सेरिब्रम में नहीं जाती, पहले आती है किधर, डायनसेफलॉन के थैलेमस वाले रीजन में, तो ये जाके अंदर थैलेमस में रिले कर जाएगा इधर। अब थैलेमस की मर्जी है कि आगे भेजे कि ना भेजे, वो यकीनन भेजेगा, किसके पास, सेरिब्रम के पास। तो सेरिब्रम के पास थैलेमस भेजेगा, तो अब की बार ये न्यूरॉन फिर मल्टीपोलर, अब की बार कौन सा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बिलाखिर किस पे जाके एंड करेगा, सेरिब्रम पे जाके एंड करेगा। और जब सेरिब्रम पे जाके एंड करेगा तो आपको एहसास हो जाएगा आई एम बीइंग टच्ड, इस जगह पर, दो जगहों पर, फला ऑब्जेक्ट, ये आप जो आंखें बंद हैं फिर भी बोल देंगे कि मेटल टच कर रहा है कि वुड कर रहा है कि किस पॉइंट पे कर रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको सेरिब्रम बताएगा। और इसको हम कहेंगे परसेप्शन, एहसास, इदराक, ये काम आपका सेरिब्रम का है। समझ गए, ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेगा आपको। तो ये आपने देखा कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं और ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स किधर किधर मौजूद है। और आगे चल के कहीं ना कहीं मैं आपको बता भी दूंगा कि ये बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ये कुछ खास जगहों पर बाइपोलर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ न्यूरॉन्स की शेप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स उमूमन आपसे पूछे जाते हैं। ये देख रहे हैं मल्टीपोलर, ये देख रहे हो, ये एक ही पोल से निकला है लेकिन स्प्लिट हो गया, सूडो यूनिपोलर। और ये देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल यूनिपोलर है क्योंकि इसके एक पोल पर यहाँ है ही कुछ नहीं। यूनिपोलर वैसे बहुत ही रेयर होते हैं, इनको आप एग्जाम्पल में आप शामिल ही नहीं करें। लेकिन ये देखें, इस साइड से आ गया, इस साइड से आ गया, एक साइड से डेंड्राइट है, सिंगल डेंड्राइट, भले वो स्प्लिट हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सॉन इसका। हाँ हाँ, सूडो यूनिपोलर जो है एक्चुअली सेंसरी वाले माइलिनेटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अनमाइलिनेटेड है, माइलिनेटेड भी होंगे। तो सूडो यूनिपोलर ना, इसमें माइलिन शीट दिखाई नहीं है इसने, लेकिन नॉट ऑल सूडो यूनिपोलर आर दे आर अनमाइलिनेटेड। कुछ सेंसेशनों के अनमाइलिनेटेड होते हैं, नो डाउट। इसलिए उसने जानबूझ के यहाँ पर माइलिन शीट को यहाँ गायब किया है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये सेल्स, जहाँ 1000 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो वहाँ 1000 बिलियन ये भी हैं, और कहीं तो ये उससे ज़्यादा भी हैं, या ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं, और वो एक्साइटेबिलिटी है उनके अंदर, न्यूरॉन्स में एक्साइटेबिलिटी है, इनमें ये एक्साइटेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा दूसरा जो फ़र्क है, वो नॉन माइटोटिक होते हैं, एक दफ़ा गए तो गए, लेकिन ये रिप्लिकेट हो सकते हैं थ्रू आउट लाइफ।
माने इसका मकसद ये है कि अगर इनमें से कुछ भी डैमेज हो गए तो दूसरे ग्रो करके इसको रिफिल कर देंगे यहाँ पर, तो ये ग्रो कर सकते हैं। और इसमें दरअसल आपके ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। जैसे उसमें से एक है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स, शक्ल उसकी ये है स्टार लाइक। क्या है ये? एस्ट्रोसाइट्स हैं ये। इनको ये मेन सपोर्टिंग सेल्स आपके वो जो 500 बिलियन है ना, आपके आधे, सॉरी 1000 बिलियन जो हैं, 1000 बिलियन में कोई आधे से ज्यादा ये हैं, शायद से भी ज्यादा। मेजॉरिटी ऑफ द ग्लायल सेल्स दे आर एस्ट्रोसाइट्स। और एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें एस्ट्रोसाइट्स में आप देखें कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है। ये खास तौर पे ये तुम्हारी ब्लड वेसल है अंदर, किसमें? ब्रेन वगैरह में। ये ब्लड वेसल है, जहां जहां ब्लड वेसल्स होंगी ना वहां वहां इनका नंबर ज्यादा होगा। हाँ हाँ, वहां वहां उनका नंबर। फायदा उसका ये है कि ये अपने जो प्रोसेसेस निकालेंगे ऐसे, ये प्रोसेसेस आएंगे ब्लड वेसल्स के करीब और ब्लड के अंदर मौजूद जो टॉक्सिन्स वगैरह होंगे या इस किस्म की चीज़ होंगी उनकी, यानी ये अगर साइड इनकी क्लोज कर देंगे तो उस कैपिलरी की या उस ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? मैं यहां से इसको ऐसे रोक रहा हूं तो अंदर के मटेरियल बाहर आसानी से आ पाएंगे कि मुश्किल से? आसानी से। मैं उनको रोक रहा हूं और वो आसानी से आ पाएंगे। इससे बेटर है कि मैं छोड़ देता उनको तो वो आसानी से आ जाते। मैं दरवाजे को बंद कर रहा हूं, वो बाहर वाला आसानी से खोल देगा, या मैं छोड़ूंगा तो आसानी से खोलेगा। ये तो अकल की बात थी मेरा ख्याल है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है ये जवाब सुन के, लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी, ये हर दफ़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये क्या करेगा, क्या ये एक तरह से ब्रेन के सब्सटेंस को तुम्हारी ब्लड के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और दूसरे मेटाबोलाइट से बचाएगा। वरना अगर ऐसा न करता तो खाने में जो तुम गंदबला खाते हो वो बड़े आराम से वो इंटेस्टाइन से तुम्हारी ब्लड में भी आ जाती है और ब्लड में आके तुम्हारी लिवर से गुजर के पूरे बॉडी में फैल जाती है। तो इस किस्म के टॉक्सिन्स ब्रेन के लिए होते हैं बड़े ख़राब, वो यहाँ भी मौजूद हैं। अगर ये ना होता तो ये टॉक्सिन बाहर ना आ जाता। आता कि नहीं? याद समझ लो कि आपके ब्लड में कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, इस किस्म की चीज़ आ गई, जैसे मलेरिया वगैरह है या कुछ, तो अगर ये यहाँ हो जाता और ये न रोकने वाले होते तो क्या ये ब्रेन के सब्सटेंस में नहीं आ जाता क्या? तो नेचर ने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हज़ारों इस किस्म के, लाखों इस किस्म के एस्ट्रोसाइट्स और उनके ऊपर ब्रांचेस देके उनके नॉब्स को यहाँ दबा के रखा है ताकि नॉर्मली ये परमिबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाए और नॉर्मली आसानी से ये ट्रांसमिट न हो पाए। डिफेंस से तो नहीं है ये, डिफेंस नहीं है ये बाबा देखो, ये अगर मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दूं, ये ऐसे ऐसे कर दूं, ये ऐसे हज़ारों करोड़ों में सेल वैसे ही 1000 बिलियंस में है और बिलियंस में जो इससे ब्रांचिंग दोगे तो वो वैसे ही मल्टी बिलियंस हो जाएंगे। तो ये अगर मैं इस तरीके से ब्रांचेस को ऐसे कैपिलरियों के वालों पे बाहर से ऐसे दबा के रखूं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं बैरियर। किसके और किसके बीच में? और ब्रेन के बीच में। इस बैरियर को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं? तो कोई अगर बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी चीज अगर ब्लड में घूम भी रही है तो घबराएं नहीं, ये ब्रेन में एंटर हो नहीं पाएगी। न्यूट्रिशंस हो जाएंगी, ग्लूकोज वगैरह आप पी लें तो वो हो जाएगा, ऑक्सीजन आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस ये नहीं जा पाएगा। इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करने वाला सबसे बड़ा ग्लायल सेल्स कौन है? एस्ट्रोसाइट्स है। ये बताना इंपॉर्टेंट था आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आदि ब्लड ब्रेन बैरियर, ये सेल्स हैं आपके। दूसरे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका मेन काम क्या है। क्या है इसका मेन काम? माइलिन शीट बनाना। किधर? वो बाहर वाले नर्व्स में कि अंदर वाले ट्रैक्स वगैरह में? ठीक है ना, ये अंदर वालों में। बाहर वाले तो शॉन सेल से बनते थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल्स हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स।
ये बेसिकली माइक्रोग्लियल सेल्स आए बाहर से ही हैं, दरअसल नर्वस सिस्टम में आके बैठ गए हैं। ये इंपोर्टेड सेल्स हैं, ये ग्लायल सेल्स का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन ये इंपोर्टेड हैं। इंपोर्टेड का मकसद ये है कि ये आए हैं आपके, वो जो ब्लड सेल्स होते हैं ना आपके, 3 होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, 2 होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स। जो एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये बेसिकली मोनोसाइट्स हैं। ये क्या है? जो घूम रहे हैं ब्लड में वो तो मोनोसाइट के नामों पे घूम रहे हैं। उनमें से कुछ को ऑर्डर हो गया है कि भाई नर्वस सिस्टम को भी ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। तो मोनोसाइट का भी क्या काम होता होगा? प्रोटेक्शन। यहाँ ऑर्डर आ गया है कि नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ब्लड सेल्स को ले आओ। तो ब्लड सेल में भेजा जाएगा मोनोसाइट्स को, और मोनोसाइट कैपिलरियों से बाहर बाहर निकल के सेटल हो जाएंगे। जैसे ना सिक्योरिटी किसी कंपनी को आप बोलते हो कि बाबा हमें 6 चौकीदार चाहिए या इस किस्म के, तो वो आके बैठ जाएंगे अपनी अपनी पोजीशनों पे, और अपनी अपनी पोजीशनों पे बैठ के ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर कोई बड़े बड़े सेल्स हो गए इतने मोटे हो जाएंगे। वहाँ पर मोटे दूसरी जगहों पे हो जाते हैं मोटे, तो उनका नाम पड़ जाता है उधर जाके मैक्रोफेजेस। लेकिन यहाँ जगह नहीं है इतनी कि तुम जाके मोटे हो जाओ और इस किस्म के, नहीं, यहाँ असल में रहना है तुम्हें दूसरे सोलों से बहरहाल छोटा ही रहना है। और फिर तुम्हें यहाँ पर मोनोसाइट नहीं कहा जाएगा, मैक्रो भी नहीं कहा जाएगा, मैक्रोफेजेस, क्योंकि इतने मोटे हुए नहीं हो तुम और अलाउ भी नहीं है। तो फिर तुम्हारा नाम ग्लायल सेल्स रहेगा, लेकिन दूसरे ग्लायल सेल से तुम छोटे ही रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ जाएगा माइक्रोग्लायल सेल्स। और काम वही करोगे जो प्रोटेक्शन वाला होता है, इम्यूनिटी वाला काम। वो ब्रेन में कोई खुदा न खासा कोई ऐसा टॉक्सिन या कोई ऐसा बैक्टीरिया आ भी गया तो डिजीज होने से पहले ही तुम उसको दबोच लोगे। ये जो हमारे गार्ड बैठे हुए होते हैं, पुलिस बाद में आती है, पहले ये मुकाबला करते हैं। बैंक का गार्ड आपने देखा है ना, बैंक का गार्ड बेचारा देखो, कोई अगर कोई डकैत आ जाता है तो सबसे पहले वो लड़ता है, और उसके बाद जब मामला हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैनेजर फ़ोन करके दूसरों को बुलाता है, फिर पुलिस आती है। वो पुलिस से हो भी मामला ऊपर उठ गया तो फिर रेंजर्स, और इसी तरीके से यहाँ पर सिलसिला है। तो ये डिफेंस के वेरियस स्पॉट्स हैं। तो ये है वहाँ पर क्या, ये उधर माइक्रोग्लायल सेल्स। ये बेसिकली कहाँ से आए हैं? मोनोसाइट से आए हैं। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़े से इलाज हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल इतने नहीं होंगे कि यहाँ, तो हम इसको माइक्रोग्लाया कहते हैं। ये माइक्रोग्लायल सेल्स हैं। और उसके बाद जो ग्लायल सेल्स का गंद कचरा बच गया तो ज़ाया उसको भी नहीं करेंगे। फिर जब उसको ज़ाया नहीं करेंगे तो आप बोलते उसका क्या करेंगे? अब देखो यहाँ, आप यहाँ पर देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चलो स्पाइनल कार्ड बार बार कह रहे हैं तो अभी भी स्पाइनल कार्ड ही कहो, अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये कोई सेल नहीं है ये अब न्यूक्लियस, हर गोल चीज़ को न्यूक्लियस नहीं कहते। ये ग्रे मैटर है, यहाँ पर हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियस है क्या? ये सेंट्रल कैविटी है। तुम्हें जब बड़ा गोल मिलता है, छोटा गोल मिलता है तो उसको न्यूक्लियस बोल देते हो। बचपन से ऐसा ही सीखा है ना हम लोग। तुम्हारा भी कसूर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर, और इसमें क्या भरा हुआ है? CSF। अब देखो तुम, CSF इस वक्त इस वाल को टच कर रहा है कि नहीं? और मैंने पहले आपको बताया है या नहीं बताया, अब बता रहा हूं कि हर वो चीज ऑर्गेनिज्म में, हर वो चीज जिसको सरफेस है, सरफेस का मतलब जिसको टच किया जा सके। टच का मतलब ये नहीं कि तुम टच कर सको, टच का मकसद है कोई ब्लड टच करे, फ्लूइड करे, एयर करे, जो भी टच करे जिसको, यानी सरफेस हो उसको, उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियम। क्या नाम है? तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो फ्लूइड टच कर रहा है इसको, तो ये जो चीज है ये एपिथेलियम होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये एपिथेलियम है नहीं, ये तो नर्वस टिश्यू है। ये तो नर्वस टिश्यू को तो सरफेस होती ही नहीं है। तो जहां जहां सरफेस है, जैसे ना ये मैं यहाँ हाथ लगाऊं, है तो दीवार, लेकिन मेरा हाथ दीवार तो ईंटों की बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है, प्लास्टर की बनी हुई है। मेरा हाथ प्लास्टर को लग रहा है कि कलर को? तो जो कलर लगाया है ना हमने, ये एपिथेलियम है। तुम्हारा हाथ लग रहा है इस वक्त किसको? स्किन को, लेकिन स्किन बनी है एपिडर्मिस और डर्मिस से। तो तुम्हारा हाथ किसको लग रहा है? एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस एपिथेलियम है, डर्मिस को तुम्हारा हाथ नहीं लग रहा। समझो, टिश्यू होते ही 4 हैं।
इन 4 टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। एक जिस टिश्यू को सरफेस है वो एपिथेलियम है। जो टिश्यू तुम्हें गोश्त जैसा लगे वो मसल है, ये सेकंड टिश्यू है। जो न्यूरॉन धागे 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 तो ये नर्वस टिश्यू है। जो इन तीनों जैसा ना लगे वो कनेक्टिव टिश्यू है। चाहे वो पानी जैसा हो, चाहे वो सेमी सॉलिड जेल जैसा हो, चाहे वो पत्थर जैसा हो, अगर वो धागों जैसा नहीं है, गोश्त जैसा नहीं है, टच नहीं है उसको, तो मेरी तरफ से ये कनेक्टिव टिश्यू है। मैं देखूंगा ही नहीं कि ये क्या है। अगर मैं यहां पर फीमर रख दूं, बोन, तो ये 4 टिश्यूज में से क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये ना तो गोश्त जैसा है, न धागों जैसा है, न इसको टच किया जा सकता है, तो इट्स मस्ट बी ए कनेक्टिव टिश्यू। इधर मैं चर्बी का टुकड़ा रख दूं, क्या है ये? चर्बी मसल है। कसाई को जाओगे, वो गोश्त की जगह पे चर्बी दे देगा, वो जाओ 2 किलो चर्बी लेके जाओ घर, तो आपकी अम्मी तो थप्पड़ मार के तुम्हें लात मार के निकाल देगी। ये क्या लेके आए हो उल्लू? हाँ, क्या बोलेगी वो? कहेगी हाँ बहुत अच्छा गोश्त लेके आए हो, मसल टिश्यू है, बहुत कैसा ज़बरदस्त मसल टिश्यू है, वो लाल होता है, तुम तो सफ़ेद लेके आए हो, तुम तो बहुत अच्छे, ऐसे बोल देगी क्या? और चर्बी की कढ़ाई बना के आपको खिला देगी। 2000 रुपये किलो हो गया एक गोश्त और तुम चर्बी लेके आ गए हो, तो बेटा वो चर्बी नहीं होगी। वो चर्बी क्या होगी? गोश्त नहीं है, ना वो नर्व्स जैसा है, न उसको टच किया जा सकता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू। अब कहाँ बोन पत्थर जैसा, कहाँ ये सॉफ्ट? हाँ हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। यहां मैंने खून का एक गिलास रख दिया है, टिश्यू है। किधर पानी, किधर वो सॉफ्ट, किधर वो पत्थर? अब हमारी डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? कनेक्टिव टिश्यू समझे? तो इसको हम कनेक्ट, तो जहाँ जो तुम और सरफेस है तो उसको कहेंगे यार मेरी तरफ से तो ये एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम नहीं है। ग्लायल सेल्स का जो कचरा बच गया है ना आपका, वो यहाँ लगा दें आप, यानी कलर के तौर पे। अब मुझे बताएं, अब सीएसएफ इसको टच कर रहा है कि नहीं? ब्लू को टच कर रहा है, सेलों को कि नहीं? अब कर रहा है उस कचरे को। उस कचरे से तुमने क्या बना दिया? लेयर बना दिया है। ये एपिथेलियम है। क्यों एपिथेलियम है? क्योंकि सीएसएफ उसको टच कर रहा है। इस एपिथेलियम का ये सिर्फ कहां, ये एपिथेलियम किधर रखा है आपने? क्या बाहर स्किन विस्किन पे या इधर उधर, या सेंट्रल कैविटियों के अंदर अंदर से? और ये सेंट्रल कैविटी कहां है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हर जगह। स्पाइनल कॉर्ड में तो उसमें क्या भरा हुआ है? सीएसएफ। तो सीएसएफ टच कर रहा है इस एपिथेलियम को। इस एपिथेलियम को बोलते हैं एपिंडाइमा। क्या बोलते हैं? इसको एपिंडाइमा बोलते हैं। जैसे इसको हम कहते थे ना एपिडर्मिस, तो इसको कहते हैं एपिंडाइमा। ये एपिंडाइमा इज एन एपिथेलियम ऑफ द सेंट्रल कैनाल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये एपिंडाइमा वर्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ एपिथेलियम के लिए पड़ेगा। होता है ना मुख्तलिफ जगहों पर एपिथेलियम के अपने नाम होते हैं। यहाँ एपिंडाइमा, इधर एपिथेलियम का नाम एपिडर्मिस। ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियम चढ़ा हुआ है उसका नाम एंडोथेलियम। हार्ट के अंदर जो है एपिथेलियम लगा हुआ जिसको ब्लड टच कर रहा होता है, एंडोकार्डियम। यूट्रस के अंदर जो एपिथेलियम होता है जो हर महीने शेड ऑफ हो जाता है और जिसको मेंसेस कहते हैं, वो एंडोमीट्रियम। मीट्रियम वर्ड यूट्रस के लिए होता है। हर जगह पर एपिथेलियम के अपने अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो ये चौथा जो सेल है ना हमारा, वो एपिंडाइमा है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं और इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये एपिथेलियम जो आपका एपिंडाइमल सेल्स है। और ये क्या है? ये फ्लूइड जहाँ से इसे बढ़ा वो ये इनको टच कर रहा है यहाँ। तो ये एपिथेलियम है। दिस इज एपिथेलियम लाइक दिस आल्सो। ठीक है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।